نثری ادب کے ہمارے پاس صدر اور دیگر اراکین موجود ہیں. ہم ادبی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے صدر موصوف سے بات کرنا چاہیں گے کہ ابھی فی الحال آپ کے ادارے کے ذریعے کون سی ادبی سرگرمیاں جاری ہیں؟ ہمارے ادارے کے ذریعے ہر ماہ ایک نشست ہوتی ہے جس میں مختلف ادیب اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں. بالخصوص شروع کی پہلی تخلیق جو ہوتی ہے وہ بچوں کے ادب پر ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے اقبال برقی سر اور مجید ماسٹر صاحب اکثر ادب اطفال پر کہانیاں یا کوئی ایسا بچوں کے ادب پر کوئی نہ کوئی تخلیق پیش کرتے ہیں. خاص بات ہمارے ادارے کی ان نشستوں کی یہ ہے کہ ہر تخلیق کے بعد اس پر حاضرین میں سے لوگ تبصرہ بھی کرتے ہیں، تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نئے لکھنے والوں کی ایک طرح سے تربیت ہوتی ہے اور نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح ہماری یہ نشستیں جاری ہیں اور آپ کی دعا سے بہت کامیابی سے چل رہی ہیں. اس میں اچھی کافی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ لکھنے والے بلکہ سننے والے باذوق سامعین، ان میں نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. اس اعتبار سے ہماری یہ نشستیں تربیتی انداز میں چل رہی ہیں، اور پرانے لکھنے والوں کی تو تربیت کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن نئے لکھنے والے جو ہیں ان کی ایک طرح سے تربیت ہوتی ہے. سر، جیسا کہ آپ نے بتایا نثر کو فروغ دینے کی نیت سے اس ادارے کا قیام عمل میں آیا تھا، تو کیا ان 15 سالہ سفر میں ادارہ نثری ادب نے کوئی قلمکاروں کو پیدا کیا ہے، اور اگر نئے قلمکار وجود میں آئے ہیں تو ان کی قلمی خدمات کیا ہے اور وہ کس ضمن میں اپنے کارروائی کو آگے بڑھائے ہوئے ہیں؟ ادارہ نثری ادب نے نئے افسانہ نگار دیے، خاص طور سے بلیک اینڈ وائٹ، جس کو 2 اکیڈمی ایوارڈ حاصل ہوا، طاہر انجم صدیقی. یہ ادارہ نثری ادب میں افسانے پیش کرتے رہے ہیں. بالکل ابتدائی دنوں میں شروعات کی تھی ہارون اختر نے. ہارون اختر آج ایک ہندوستان کا اچھا ابھرتا ہوا افسانہ نگار، اور ایک نظریے کے تحت، یعنی خاص طور سے ترقی پسند افسانہ نگار کے تحت اس نے اپنی پہچان بنائی، اس نے اپنی شناخت بنائی. اس کے افسانے مختلف رسائل میں چھپ رہے ہیں، اور ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار کی حیثیت سے وہ جانا جا رہا ہے. میں اپنی بات کروں تو میری کتاب ادب اطفال سے متعلق NBT نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا وہاں سے شائع ہوئی. قومی کونسل نے میری کتاب بچوں کے ادب پر شائع کی. بچوں کے ادب کے ایک ادیب کی حیثیت سے جب NBT نے پورے ملک کی ایک ادبا کی لسٹ یا ایک فہرست ترتیب دی، اس میں میرا نام شامل کیا. 2015 میں قومی کونسل نے جو بچوں کے ادب پر ملک گیر سیمینار کیا، ورکشاپ کیا 3 دن کا، اس میں مجھ کو دعوت دی گئی. وہاں میں اپنی تخلیقات پیش کرتا رہا اور کافی سراہا گیا. ملک کے نامور ادیب رتن سنگھ، اس وقت عمر 88 برس تھی، انہوں نے پیٹھ تھپتھپائی، شاباشی دی. ذکیہ مشہدی نے کافی سراہا، اور غلام حیدر جو ملک کے مایا ناز ادیب الاطفال میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے میری کہانیوں کو پسند کیا اور مجھ کو دعوت دی کہ آپ لکھتے رہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ادارہ نثری ادب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ سارے جو لکھنے والے آج ملک میں اپنی جو پہچان بنا رہے ہیں یا شہرت پا رہے ہیں اور ان کو پسند کے، یہ تمام کے تمام ان کے سارے جو پیر ہم دیکھیں گے تو ادارہ نثری ادب کے پلیٹ فارم پر ٹکے ہوئے ہیں. یہیں سے ان کی پہچان بنتی ہے. یہ ادارہ نثری ادب کے لیے ایک فخر اور افتخار کی بات ہے کہ اس طریقے سے انہوں نے نئے ادبا کو دیا ہے، صرف شہر میں ہی نہیں
बल्कि वो मुल्क गिर शोहरत के हामिल हो रहे हैं। मैं अतीक शाबान सर से पूछना चाहूँगा कि आप जो तर्जुमा करते हैं, क्या किसी खास राइटर या लेखक से आप मुतासिर हैं? तर्जुमे का फ़न मुकम्मल तौर पर एक जो है फ़न की हैसियत से जो इसको अदब में दर्जा मिला है, इस जानिब जो है बहुत सारा मवाद हमको नहीं मिलता कि हमको तर्जुमा करने के लिए कौन से उसूल ज़ाबित और क्या मकासद सामने रखे जाएँ। बेहतर यह है ये फ़न जो है उस वक्त से ये फ़न राइज है जब से उर्दू अदब जो है वजूद में आई है, और जब लिखना पढ़ना वजूद में जब तक नहीं आया तो उसके पहले भी जो है लोगों को बीच में तर्जुमान की ज़रूरत पड़ती थी। किसी दो लोगों का अगर आपस में मिलना, कोई शनासा है उसकी ज़बान अलग है तो इसके लिए बीच में एक मुतरज्जिम की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये बहुत पुरानी चीज़ है। तो ये जो फ़न है अदब में, उर्दू अदब में भी जो है जब उर्दू से बहुत सारी जो है कहानियाँ, बहुत सारे ड्रामे, बहुत सारी चीज़ें जो है शुरू में इसको जो है ट्रांसफॉर्म किया गया और इसका ट्रांसलेशन किया गया और इसको अदब में वही हैसियत हासिल है जो दूसरे जो असनाफ को जो है हासिल है, नसरी असनाफ को, तो उसी तरह तर्जुमे को भी हासिल है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं इस किस्से मुतासिर हुआ तो मैं यही कहूँगा कि मैं मुतासिर जो हुआ हूँ कि ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं इंग्लिश ज़बान के अंदर हैं वो उर्दू में मौजूद नहीं है, चाहे वो मालूमाती हो चाहे अदबी हो, और उर्दू अदब में नहीं है। इसकी कमी को जो है पूरा करने के लिए दीगर उदबा को भी जो है इस जानिब कोशिश करना चाहिए। और सहाफ़त के अंदर भी आप देखा जाए कि तर्जुमे की ज़रूरत पड़ती है। तो सहाफ़त की ज़बान अलग होती है, अदबी ज़बान अलग होती है और इल्मी ज़बान अलग होती है। मिसाल के तौर पे जो तिब की किताबें हैं, दीगर जो है किताबें हैं, उसके अंदर टर्मिनोलॉजी को जो है उसका तर्जुमा करना ज़रा मुश्किल होता है। तो टर्मिनोलॉजी और इस तरह का जो पैदा करना एक अहम एक जो चीज़ है, ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो बहुत से जब तराजिम मैंने पढ़े हैं और दूसरी ज़बान की कहानियों को उर्दू में मैंने पढ़ा है तो मैं बहुत मुतासिर हुआ। वो जो अदीब है, मैं चाहता था कि वो लोग जो जिस तरीके से तर्जुमा करते हैं उस तरीके से या कुछ अपने नए अंदाज में तर्जुमा करूँ। बस और जो है इसमें मुख्तलिफ राय है, उसलूब का जो है स्टाइल अलग का अलग होता है, वो स्टाइल ट्रांसफॉर्म होना चाहिए कि नहीं अदब में, इस पर भी बहस चल रही है। कोई बोले कि स्टाइल जो है उसलूब जो है सबका अलग होता है, लेकिन बाद लोगों का ये कहना है कि नहीं, जो स्टाइल उस मुसन्निफ का है जिस ज़बान से आपने तर्जुमा किया है वही स्टाइल इसमें भी आना चाहिए। तो ये मुमकिन बात नहीं है। हर एक का स्टाइल जो है अलग होता है, उसलूब अलग होता है। बस और तर्जुमा अगर किया जाता है तो हमको आसान ज़बान में, सलीस ज़बान में, रवा ज़बान में होना चाहिए ताकि हर कारी तक जो है वो पढ़े और उसको समझ में आ जाए। अदारा नसरी अदब की माहाना नशिस्तों के हवाले से आम लोगों का ये ख्याल है कि ये नशिस्त महज एक अफसानवी नशिस्त होती है जिसमें फ़र्ज़ी दास्तानें, देवमालाई कहानियाँ और किस्से कहानियाँ बयान की जाती हैं। तो क्या अदारा नसरी अदब अफसानवी दुनिया से निकल कर गैर अफसानवी दुनिया, जिसे इस्तिलाह अदब में गैर अफसानवी कहा जाता है लेकिन वही हकीकत हाल है, वही सच्ची दुनिया है, तो क्या अदारा नसरी अदब के पास ऐसा कोई मनसूबा या प्लान है कि जीती जी जो दुनिया हमारे सामने मौजूद है उसके हवाले से कुछ मनसूबा बनाया जाए? देखिए, अगर ये कि अफसानवी अदब जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, अगर ऐसा लोगों का ख़्याल है तो मैं समझता हूँ कि ये लोगों की खाम ख्याली है। और कोई भी बाज़ौक़ अदब का कारी या अदब का शगफ़ रखने वाला इस किस्म के ख़यालात का इजहार कर ही नहीं सकता। अदब ख़ुद ज़िंदगी का तर्जुमान होता है, तो वो हकीकत से परे कैसे हो सकता है? उसको देवमालाई कहाँ कहा जाएगा? अदब ज़िंदगी की अक्कासी करता है, अफसाने ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं की अक्कासी करते हैं। आज हमारे शहर में या ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, आप उनको अच्छी तरीके से खुर्दबीनी अगर जायज़ा लेना है तो उसका किसी भी ज़बान का अफसानी अदब का जायज़ा लीजिए, आपको वो इंसानी मसाइल का खुर्दबीनी अक्स उसमें दिखाई देगा हाईलाइट करके। तो ये मैं समझता हूँ कि इस किस्म के ख़यालात ये ठीक नहीं है, और ये कोई अदब का कारी या अदब से शगफ़ रखने वाला, अदब का ज़ौक़ रखने वाला इस किस्म के ख़यालात का इजहार भी नहीं कर सकता। रह गई अदारा नसरी अदब की बात, तो अदारा नसरी अदब में सिर्फ़ अफसानवी तख्लीक़ात नहीं पेश की जाती, इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन भी पेश किए जाते हैं, शख्सियात के ऊपर खाके पेश किए जाते हैं। और शेक्सपियर के ड्रामा मैकबेथ का तर्जुमा मैंने पेश किया था। तो ये इस किस्म की अशफाक अंजुम ने
तज़किरा अवाइल मालेगांव रमज़ान फैज़ी की किताब के ऊपर एक तनकीदी बल्कि तनकीसी मजमून पेश किया था। इस किस्म की भी तख्लीक़ात हमारे यहाँ पेश होती हैं और हो रही हैं, और हम तो हर किस्म के यानी अच्छा अदब लिखने वालों को बिल्कुल उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनको खुश आमदीद कर रहे हैं। तो बराए करम दार नसरी अदब के मुतालिक अगर आपके इस किस्म के ख्यालात हैं तो उन्हें आप दुरुस्त कर लीजिए। शुक्रिया सर, बेहद शुक्रिया, आपने लोगों के खिलजान को दूर किया। लेकिन एक दौड़ मची हुई है शहर मालेगांव में असनाफ को लेकर, और लोग नित नई असनाफ इजादात करके उसके मौजूद बनना चाहते हैं, उसका क्रेडिट हासिल करना चाहते हैं। तो ये जो तिफल मकतब का खेल खेला जा रहा है, इसके हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? इस ताल्लुक़ से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आजकल जो असनाफ की इजादात का मसला छिड़ा हुआ है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक है, और ख़ास तौर से मोबाइल, और मोबाइल लोगों की हथेली पर होता है, लोग उस पर उंगली फेरते हैं, मंज़र बदल जाता है, डायलॉग बदल जाता है, इबारत बदल जाती है, सामने जो आता है उस पर आदमी की दिलचस्पी। तो वो लोग जो जिनका कोई शौक़ नहीं है, कोई अदबी तहरीर देखकर उसमें थोड़ी देर के लिए गेम खेलते खेलते उस पर आ जाते हैं और एक नया चुटकुला उसमें छोड़ देते हैं, तो क्या हम उसको अदीब या संजीदा कारी कहेंगे? बिल्कुल नहीं। ना वो संजीदा कारी हो सकते हैं, ना संजीदा अदीब हो सकते हैं। ये तो एक खेल था, गेम खेलते खेलते उस तरफ आ गए, एक इबारत नज़र आई, किसी ने कुछ नाम दिया, कमेंट्स पढ़े, उन्होंने भी एक नाम ऐड कर दिया। तो ये उनका खेल है, तो उनका खेल रहने दीजिए। आप उसको इस संजीदा अदब से या एक जो अच्छा मेयारी अदब है उससे नीची करके मत देखिए। वो अदब आज भी पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर नहीं पढ़ा जाता, नहीं लिखा जाता। आज भी अदब और किताब, इसका रिश्ता उतना ही मजबूत है जितना कल था।